Education, he is an electronics and telecommunication engineer from College of Engineering, Pune. And then he worked extensively in a software company, a multinational company, before actually dedicating his life and for this mission of Srila Prabhupada to preach the transcendental message of Bhagavad Gita, Srimad Bhagavatam, and all the transcendental literatures. I still remember initial days when we were newly introduced to Chaitanya Charan Prabhu, we used to take so much pride to tell others that we have a personality who is a top scorer in GRE. So all the students, young generation, please hear carefully. He is the Maharashtra State GRE topper with 2350 out of 2400 score. And he was also supposed to be a TOEFL topper. So since his childhood, even before coming to Krishna consciousness, he has been, excelled in his academics, and so wonderfully he has applied his intellect into, learning the shastras carefully and sharing this message with all of us. So over the years, as he has dedicated his full-time, life for the mission of Prabhupada as a monk, full-time monk, he's been preaching worldwide. Especially, the universities like Princeton, Cambridge, and companies like Intel or, Microsoft, his seminars, corporate seminars are well sought for. He is sought after speaker, all throughout the world. So you can imagine our fortune of having him here for a few moments, right? Maybe an hour, maybe more. But Shana Matra Sadhu Sangha Sarva Siddhi Hoy. So we are aspiring to have that gift of association. Even before Corona times, when the online preaching fad started, Chaitanya Charan Prabhu, such a visionary he is, he has started his online preaching years before. He's GitaDaily.com, most of you know. This is the world's only Gita lesson, daily lesson, where he promotes, he comes out with realization on a verse of Gita, about 300 words, every day. So more than Prabhuji, 2,000 or more than that? 4,000. More than 4,000 such sessions are available online. He also promotes open question answers. One of the best things which I am personally fan of is his enormous dearth of treasure on question and answers. Any question on any subject of this, entire universe, you can ask him and he has an answer for it. And those are available online. So you can all take benefit of that. Along with that, he has his own website called www.spiritualscientist.com, where all these 4,000 plus question answers are available. His sessions are available. Also, his articles, well-written articles, are published regularly in papers like Economic Times, Times of India, The Speaking Tree, the column. They are world famous. So much so that his works, the academic works, have been translated in more than 5 languages of India and several other international languages. No wonder he is the member of, there is a GBC appointed committee of Shastrik committee, right? Shastrik Advisory Committee. This is an apex body which does research and publishing in Shastras. You can imagine ISKCON's apex body. He is the member of it. And he is also associate editor of the world famous Back to Godhead magazine, which was, started by His Divine Grace, Srila Prabhupada. Before giving, mic to him, word of caution, make no mistake, although we are so much enamored and impressed by his academic, intellectual articulation of, preaching of Krishna consciousness message. But behind that, there is a deep concern and care which he imbibes, legacy from his spiritual master, His Holiness Radhanath Swami Maharaj. And that deep care and concern for all of us makes his sessions so effective that it not only, kind of penetrates through our intellect, through our mind, but it touches and nourishes our souls. So with that short introduction, again, we have this great fortune and we are really, really grateful for His Grace Chaitanya Charan Prabhuji to take out his valuable time to come here and bless us with his wonderful discourse on Bhagavad Gita. Today is going to speak on chapter number 16. So let us all welcome from our heart, or bottom of our hearts,
with loud chanting of Hare Krishna Mahamantra. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. His Grace Chaitanya Charan Prabhu ki jai. His Divine Grace Jagadguru Srila Prabhupada ki jai. Jai Gaur. ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकाय चक्षुरोन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। My dear Lord, please guide us all so that we can understand your message and come closer to a life of virtue and devotion by aligning with your message. हरे कृष्णा। मैं कृतज्ञ हूँ आज आप सबके बीच में आया हूँ और हम भगवद गीता के 16वें अध्याय के आधार पर हम आज 3 विषयों की चर्चा करेंगे। ये विषय क्या है? प्रकृति, संस्कृति और विकृति। इसको हम इंग्लिश में कह सकते हैं नेचर, कल्चर और वल्चर। वल्चर क्या होता है? जो गिरड़ होता है वो आसमान में बहुत ऊंचा जाता है पर नीचे लाश कहाँ है वही देखता है। तो प्रकृति, संस्कृति और विकृति। तो अभी क्या है? प्रकृति का नियम क्या है? माइट इज राइट। जिसकी लाठी उसकी भैंस, ये प्रकृति का स्वभाव है। दो कुत्ते अगर झगड़ा करते हैं तो जो कुत्ता ज्यादा शक्तिशाली है वो जीत जाता है। संस्कृति का मतलब क्या है? कि माइट विथ वर्च्यू इज राइट। यहां पे माइट मतलब है शक्ति और वर्च्यू मतलब है धर्म। शक्ति है और धर्म है। और विकृति क्या है? माइट विदाउट वर्च्यू इज राइट। कि धर्म हो ना धर्म हो, जिसके पास शक्ति है वही सही है। तो अभी जो हम मानव है तो एक प्रकार से हमारा शरीर जो है जानवरों के समान ही है। तो जो जानवर की प्रवृत्ति है वो हम सब में भी है। आहार निद्रा भय मैथुन करते हैं हम सब। और जो जानवर की प्रवृत्ति है क्या है? कि माइट इज राइट, वह मानव में भी होती है। पर मानव में विशेषता क्या होती है? कि वो संस्कृति, जो प्रकृति है, प्रकृति के ऊपर संस्कृति आती है। तो प्रकृति होती है पर प्रकृति के ऊपर जो होती है संस्कृति आती है। तो अभी जो 16वें अध्याय के हमने कुछ श्लोक रिसाइट किए, क्या है? कि जो दैवी प्रकृति जो होती है वो क्या है? प्रकृति संस्कृति की ओर जाती है। और जो असुरी प्रवृत्ति होती है वो क्या होती है? प्रकृति जो है वो विकृति की ओर जाती है। तो अभी इसका मतलब क्या है? कि अगर हम देखेंगे जो प्राणियों में जो नियम होता है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट,
जो सबसे ज्यादा फिट है वो जिएगा। अभी डार्विन का जो पूरा सिद्धांत था, ऐसे वो उसमें कुछ वैलिड नेचुरल ऑब्जर्वेशंस है। और जीवो जीवस्य जीवनम, ये भागवत में बताया गया है। ये एक सृष्टि का नियम है कि जो शक्तिशाली है, जो जिसके पास प्रतिभा है, शक्ति है, वो जिएगा, वो जीतेगा। पर अगर हम मानव संस्कृति देखते हैं, तो अभी मानव संस्कृति अगर हम देखते हैं तो क्या है, ये माइट इज राइट नहीं है ये, और ये सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट नहीं है। ये क्या है, सैक्रिफाइस बाय द फिटेस्ट। अभी सैक्रिफाइस बाय द फिटेस्ट मतलब क्या, कि अगर मान लीजिए कोई बच्चा कोई पानी में डूब रहा है, तो क्या होता है, कोई व्यक्ति जो शक्तिशाली है वो दौड़ेगा और वो खुद वहां पे कूदेगा और बच्चे को बचाएगा। अभी जब अमेरिका में ट्विन टावर्स गिर गया था, तो वहां पे जो फायर फाइटर्स थे वो दौड़ते हुए उसके अंदर चले गए। उनको पता था कि कभी वो पूरा गिर सकता है, वो जल रहा था, फिर भी क्या किया उन्होंने, ये हमारा कर्तव्य है, ये हमारा धर्म है। तो धर्म क्या सिखाता है कि जो फिट है उन्होंने क्या करना चाहिए, न कि जो अनफिट है उनको मरने दो। क्या है कि जो फिट है वो जो अनफिट है उनके लिए कुछ त्याग करे, उनकी मदद करे। तो जो फिट है वही निसर्ग के नियम से सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट ही रहेगा, वो प्रकृति है। पर संस्कृति क्या है, जो फिट नहीं है उसकी भी मदद करनी चाहिए। तो इसी से दान आता है, क्या है कि इसी से जो मानवता में नोबल क्वालिटीज होते हैं, ये सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट जो है, ये एक ब्रूट फैक्ट है नेचर का, ये सत्य है। बट इट इज नॉट अ इंस्पायरिंग फैक्ट। कि जो इंस्पायरिंग प्रेरणा किससे मिलती है, जब कोई सैक्रिफाइस करता है, जो कोई नोबल अच्छे गुण दिखाता है और कुछ त्याग करता है किसी चीज के लिए। तो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट से ज्यादा आनंद नहीं आता है, संतुष्टि नहीं आती, देयर नॉट अ डीप हैप्पीनेस, मैं तुमसे बेहतर हूं। पर जब सैक्रिफाइस ऑफ द फिटेस्ट होता है, उससे वास्तव में एक बहुत गुड, एक बहुत डीप सेटिस्फैक्शन आता है। पर अभी जो विकृति हो जाती है उसमें क्या होता है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट ही नहीं, इट इज एक्सप्लॉइटेशन बाय द फिटेस्ट। जो सबसे फिट होते हैं वो दूसरों का शोषण करते हैं। अभी मानव ऐसे अकेले, सारे जानवरों में मानव अकेले है जो करुणा दिखा सकते हैं, जो त्याग कर सकते हैं। जानवर त्याग नहीं करते हैं। पर मानव ऐसा ही एक जानवर है जो दूसरों मानवों को हजारों लाखों की संख्या में मार सकता है। जो भी बहुत हिंसा पूरे विश्व के इतिहास में हुई है, जो पाश्चात्य वेस्टर्न हिस्ट्री जो है, उसमें लगभग वी हैव एक्यूरेट हिस्ट्री ऑफ लगभग 1500-1700 साल की एक्यूरेट हिस्ट्री है। उसके बाद में इतना क्लियर नहीं है। इस 1700 साल में वास्तव में 120 साल से ज्यादा कहीं शांति नहीं रही है। सिर्फ हमेशा यहाँ युद्ध हो रहा है, वहां पे युद्ध हो रहा है। तो जो बहुत युद्ध होता है, पर कभी कभी क्या होता है, जो शक्तिशाली है वो ऐसी घातक हिंसा करते हैं कि जब शेर होता है वो मानव को इसलिए खाता है क्योंकि उसको अन्न चाहिए। पर कभी कभी मानव होते हैं वो दूसरों को मारते हैं, सिर्फ उसमें एक विकृत सुख प्राप्त करते हैं। किसी को मारने में, जो आतंकवादी होते हैं वो केवल किसी को मारते हैं, पर वो जो मारने का दृश्य है उसको शूट करके यूट्यूब पे दिखाएंगे कि देखो हम कितने क्रूरता में आनंद लेना। ये जानवर नहीं करते, ये केवल मानव करते हैं। तो ये जो है विकृति, जब संस्कृति होती है तो ह्यूमंस बिकम बेटर देन एनिमल्स, बट जब विकृति होती है ह्यूमंस बिकम वर्स देन एनिमल्स। तो क्या है कि हमें समाज में प्रकृति का नियम तो हमेशा रहने वाला है, हमेशा माइट इज राइट, ये सत्य है। तो किसी के पास वर्च्यू होगा, धर्म भी होगा,
अच्छे अच्छे मूल्य वगैरह होंगे, पर शक्ति नहीं होगी तो उनका भी विनाश हो जाएगा। हम पांडव देखते हैं, जब वो वनवास में थे, जब उनके पास शक्ति नहीं थी परिस्थिति के कारण, तो क्या उन पे भी कौरव अत्याचार कर रहे थे। तो प्रकृति के नियम को हम पलट नहीं सकते हैं। माइट विल ऑलवेज बी राइट, ये बिल्कुल सत्य है। पर वो माइट क्या वर्च्यू के धर्म के साथ होगा, शक्ति ये धर्म के साथ होंगी, या शक्ति ये धर्म के बिना होगी, वह चुनाव हम कर सकते हैं। तो अभी ये दैवी और असुरी प्रकृति है, तो ये 3 पॉइंट्स है अभी, संस्कृति, प्रकृति और विकृति। तो इसका हम थोड़ा और विश्लेषण करेंगे, कैसे जो प्रकृति है कब वो विकृति की ओर जाती है और कब वो संस्कृति की ओर जाती है। अभी यहाँ पे मैं संस्कृति जो बोल रहा हूँ, ये एक जनरल टर्म है, ऐसे नहीं कि इंडियन कल्चर या वेस्टर्न कल्चर या अमेरिकन कल्चर या साउथ इंडियन कल्चर। मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ संस्कृति वो चीज़ है जो व्यक्ति में जो वर्च्यू है, सद्गुण है, धर्म है, उसको विकसित कराती है। तो एक ब्रॉड टर्म हम संस्कृति को इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। तो अभी जब हम देखते हैं मानव का स्वभाव, अगर हम न्यूज़ पढ़ते हैं तो कई बार न्यूज़ में यहाँ पे ये हिंसा हो गई, यहाँ पे ये बुरी चीज़ हो गई, यहाँ पे ये हो गया, बहुत सारा जो मानव कितनी सारी बुरी चीज़ें कर रहे हैं वो देखते हैं। अगर हम हमारे जीवन को ही अगर जर्नल वगैरह करते तो हर दिन हम देखेंगे, अरे मैंने इसको इससे बुरा व्यवहार किया, इसको भी चिल्लाया मैं इस पे। हम हमारे जीवन में भी देखते हैं कि क्या है कि हम ऐसे कार्य करते हैं जो किसी और का स्टैंडर्ड छोड़ दो, हमारे ही स्टैंडर्ड्स के अनुसार गलत है। हमको खुद मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, पर हम वो कर देते हैं। तो क्या है कि ये जो है प्रकृति से विकृति की ओर जाना, ये एक तरह से स्वाभाविक है। ये क्या है, यहाँ पे एक ग्रेविटी का पुल होता है। जैसे अगर मैं ये फोन है, इसको छोड़ दूंगा, मैं अगर छोड़ दूंगा इसको, तो तुम बोलोगे तुमने बुद्धि को छोड़ दिया है क्या क्यों फोन को छोड़ रहे हो। पर अगर मैं ये फोन को छोड़ दूंगा, ये फोन अपने आप नीचे चला जाएगा। ये गुरुत्वाकर्षण का नियम है, वो खींच है। तो उसी तरह से क्या है, अगर प्रकृति को संस्कृति के द्वारा ऊपर नहीं उठा रहे हैं तो वो स्वाभाविक रूप से वो विकृति की ओर चले जाएगी। तो ये जो 16वां अध्याय है गीता का, वो बताता है कि सब मानव जो है ये दैवी या आसुरी प्रवृत्ति के होते हैं। सब में जो स्वभाव होता है वो अभी शुरुआत में तो ऐसे बताया गया कि 2 प्रकार के लोग होते हैं। द्वाउ भूत सर्ग लोकेस्मिन् दैव आसुर एव च। गीता में भगवान बताते हैं कि देयर आर 2 काइंड्स ऑफ पीपल, सम पीपल आर वाइज एंड सम आर अदरवाइज। तो कुछ लोग बुद्धिमान होते हैं, कुछ लोग बुद्धिहीन होते हैं। तो अभी जो लोग कार्य कर रहे हैं, ऐसे जब ये कार्य कर रहे हैं तो क्यों वो कार्य करते हैं ऐसा। तो अभी हम कहते हैं कि जो ये भगवान बता रहे हैं अभिजातस्य भारत। अभिजातस्य मतलब जो व्यक्ति का जन्म ऐसे होता है। तो क्या जन्म से ही कुछ लोग आसुरी प्रवृत्ति के होते हैं, कुछ लोग दैवी प्रवृत्ति के होते हैं। तो भगवद्गीता में एक भेद होता है कि बर्थ इज नॉट डेस्टिनी, कि हम सबका जो जन्म से एक प्रकार का स्वभाव हो सकता है, पर उसको हम परिवर्तित कर सकते हैं। और वो परिवर्तन करना जो है वह अगर किसी का दैवी प्रवृत्ति है तो दैवी प्रवृत्ति को और बढ़ा सकते हैं, किसी की और आसुरी प्रवृत्ति है तो उसको कम करके उसको दैवी प्रवृत्ति की ओर भी ले आ सकते हैं। तो ये परिवर्तन संभव है हर एक व्यक्ति के लिए। पर ये परिवर्तन करने के लिए क्या है, ये ग्रेविटी मतलब क्या है, ये एक तरह से ऑटोमेटिक हो जाएगा। पर जो प्रकृति से संस्कृति तक जाना है तो उसके लिए क्या करना है, उसके लिए हमको
ये ग्रेविटी नहीं होता है, उसके लिए हमको एफर्ट लगता है, उसके लिए हमको प्रयास लगता है। तो अगर हम अभी नए साल के समय शुरुआत में कुछ रेजोल्यूशंस बना लेते हैं तो क्या होता है, वो रेजोल्यूशन बना के उसको स्टिक करने के लिए, उसके बरकरार रखने के लिए हमको एफर्ट लगता है। एफर्ट नहीं रखेंगे तो क्या होगा, वो रेजोल्यूशन का डिसोल्यूशन हो जाएगा वो रेजोल्यूशन हम भूल जाते हैं। तो इसलिए ऊपर जाने के लिए एफर्ट लगता है, नीचे जाने के लिए एफर्ट नहीं लगता है इतना। तो अभी जो अभिजात से बताया गया है, तो मैं भी इसमें ये प्रकृति, विकृति और संस्कृति, ये जर्नी कैसे होता है इसके बारे में मैं 3 पॉइंट्स में चर्चा करूंगा। और ये हम 2 तरह से देख सकते हैं कि हमें खुद में संस्कृति से हमको ऊपर उठना है, और हमारे बच्चे हैं, हम जिनको गाइड कर रहे हैं उनमें भी संस्कृति लाके उनको ऊपर उठाना है। तो 3 थिंग्स हम चर्चा करेंगे। फर्स्ट है कि बर्थ, फिर सेकंड है, अभी क्या है कि जो जन्म होता है किसी बच्चे का, तो इसके कुछ बोलते हैं कि जो बच्चा होता है, चिल्ड्रन होता है, चाइल्ड इज लाइक क्ले। क्ले मतलब क्या है, जैसे कोई पॉटर होता है, वो जो भी शेप में डालना चाहेगा वो उस आकार में डाल सकता है। तो बच्चे एक क्ले के समान है। वास्तव में ये गीता का सिद्धांत नहीं है, क्योंकि क्ले का मतलब क्या होता है कि जैसे माता पिता चाहेंगे उस तरह से वो बच्चे को शेप कर सकते हैं। तो वास्तव में जो बच्चा है वो भी एक आत्मा है, और वो आत्मा पिछले जन्म के कर्म के अनुसार अपना एक मन साथ में लेके आता है। तो अभी क्या होता है, जब जन्म होता है तो कैसे होता है कि पुरुष और स्त्री होते हैं, तो मैन और वुमेन जब वो साथ में आते हैं तो उनके संग से एक बच्चा उत्पन्न होता है। पर जब बच्चा उत्पन्न हो रहा है तो क्या है, उनके संग से वो शरीर आ रहा है, पर कहीं और से आत्मा और मन जो उसके अंदर आता है। तो ये कहाँ से आ रहा है, मन और आत्मा जो है वह पूर्व जन्म से अपने अपने कर्म के अनुसार आ रहा है। और ये जो मन होता है, मन में अलग अलग प्रकार के संस्कार होते हैं। तो कुछ जो इम्प्रेशंस होते हैं वो अच्छे होते हैं, कुछ जो होते हैं बुरे होते हैं। तो अभी जो बच्चा है एक तरह से वो क्ले नहीं है, वो सीड के समान है, वो एक बीज के समान है। बीज मतलब क्या है, अगर हमको आम के पेड़ का बीज मिला होगा, उसमें कितनी भी मेहनत करेंगे उससे हमको सफरचंद नहीं मिलने वाला है। तो उससे अभी जो गार्डनर है उसकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। पर उसकी जिम्मेदारी क्या है, वो बीज को इस तरह से बढ़ाए ताकि वो एक बहुत अच्छा स्वादिष्ट आम बने। तो अभी जो हर जीव है उसके पूर्व जन्म से उसके कुछ संस्कार है। अभी कभी कभी भगवद्गीता में क्या होता है, जब सिखाना होता है तो एक्सट्रीम्स लेते हैं। जैसे बच्चे होते हैं, उनको अगर आपको रंग सिखाने हैं तो सबसे पहले बताया गया ये काला है, ये सफ़ेद है, ब्लैक एंड वाइट से शुरू करते हैं, क्योंकि क्या है उसका कॉन्ट्रास्ट बहुत स्पष्ट होता है। पर वास्तव में अगर हम निसर्ग में देखते हैं तो ब्लैक एंड वाइट बहुत कम रंग होते हैं, अधिकांश जो होते हैं एक बहुत बड़ा मिक्स होता है। पर कलर एजुकेशन जो है वो शुरुआत ब्लैक एंड वाइट से होना चाहिए, स्पष्ट ये ब्लैक है ये वाइट है। उसके बाद में फिर हमको दिखाया गया अलग अलग कलर, अलग शेड्स ऑफ ग्रे होते हैं, और फिर ये नीला है, ये हरा है, ये पीला है, वो सब धीरे धीरे हम सिखा नहीं सकते। तो वैसे ही भगवद्गीता में भगवान इस 16वें अध्याय में क्या कर रहे हैं, सबसे पहले ब्लैक एंड व्हाइट बता रहे हैं, ये असुरी प्रवृत्ति है, ये असुरी प्रकृति है, ये दैवी प्रकृति है। फिर तुरंत अगले अध्याय में अर्जुन सवाल पूछते हैं कि इन दोनों के बीच में क्या आता है, और फिर उसका वर्णन भगवान 17वें अध्याय में करते हैं। तो ये कहने का उद्देश्य है कि जो जन्म से अब हमने पूर्व जन्म में क्या किया है, हमारे बच्चे हैं उनके पूर्व जन्म में क्या किया है, किस प्रकार के इंप्रेशंस है, वो हमको पता नहीं है।
और पता नहीं है और हम उसको बदल भी नहीं सकते। तो जो अभिजात से बता रहे हैं भगवान, इसका मतलब क्या है कि अभी जो प्रकृति है, ये प्रकृति पूर्व जन्म के अनुसार, अभी जब कोई किसी का जन्म हुआ है तो कोई बच्चा होगा, शायद पूर्व जन्म से वह वो संस्कृति की ओर और अग्रसर होगा। कोई बच्चे होंगे वो पूर्व जन्म से थोड़ा विकृति की ओर ज्यादा गए होंगे। और ये बच्चों के लिए नहीं है, हमारे लिए भी है। हम जिस प्रकार से हमारी परवरिश हुई है, जिस प्रकार के समाज में हम जिए हैं, तो उससे क्या होता है कि हम इस प्रकार से हमारा अभी स्वभाव बन गया है। तो मैं अमेरिका में था, वहाँ पे हम जैसे यहाँ पे स्लम्स कहते हैं, वहाँ पे घेटोस कहते हैं। तो वहाँ पे एक स्पिरिचुअलिटी का प्रोग्राम के लिए मैं गया था, तो उसके बाद में बात कर रहा था, तो वो एक भक्त बता रहे थे, वहीं पे भक्त बन गए थे। बोलते कि व्हेन आई ग्रू अप, मैं जब बड़ा हो रहा था तो मैं देखा कि मेरे माता पिता हो या मेरे पड़ोसी हो, रिश्तेदार हो, द ओनली वे टू रिजॉल्व अ डिस्प्यूट वॉज टू रेज योर वॉइस। कि किसी में कोई मतभेद हो तो उसको रिजॉल्व करने का एक ही पद्धति क्या है, और जोर से बोलो। तो सबसे ज्यादा जोर से बोलेगा और सबसे ज्यादा समय तक ज्यादा जोर से बोलेगा, वो जीतेगा। तो अभी कोई अभी यही सीख गया है, तो क्या है, वो थोड़ा कोई जो ज्यादा जोर से बोलता है वो जोर सही है ऐसे जरूरी नहीं है, पर वो एक तरह से विकृति हो गई है। तो यहाँ पे माइट क्या हो गया, इट इज द माइट ऑफ द वॉइस। किसका आवाज ज्यादा बड़ा है, किसका आवाज ज्यादा बड़ा ज्यादा समय तक रहता है। मैं चिल्ला रहा हूं, तुम चिल्ला रहे हो, मैं थक जाता हूं चिल्लाते, तुम चिल्लाते रहते हो, ठीक है तुम बोलो, तुम जो सही है। तो अभी ऐसे संस्कृति में नहीं होता है, पर ऐसे हो सकता है कभी कभी। तो अभी जो पांडव थे और कौरव थे, अभी जो भगवद गीता में कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं, जो वर्णन कर रहे हैं, गीता में वर्णन कर रहे हैं, कैसे बोलते हैं कि इतमद्य मया लब्धम इमं प्राप्से मनोरथम, मैंने इतना धन प्राप्त किया, अभी मैं वो धन प्राप्त कर लूंगा। असौ मया हतः शत्रुर हनिष्ये चापराणपि, मैंने इस शत्रु को मार दिया, अभी मैं उस शत्रु को मार डालूंगा। तो जो वर्णन कर रहे हैं, तो एक तरह से ये एक मानव चरित्र का वर्णन कर रहे हैं, जो आसुरी प्रवृत्ति जो होते हैं उसका वर्णन कर रहे हैं। पर उसके साथ साथ क्या होता है कि जब भी कोई दो व्यक्ति बात कर रहे हैं, तो अभी कभी कभी ऐसे होता है कि दो व्यक्ति बात कर रहे हैं और दोनों को पता है किसके बारे में बात कर रहे हैं, पर उसका नाम बिल्कुल नहीं लेते। तो क्या होता है, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो ऐसा विचार करते हैं, अभी बोल रहे हैं जनरल टर्म्स में, पर दोनों को पता है किसके बात कर रहे हैं। तो वैसे ही जब कृष्ण अभी ये 16वें अध्याय में बता रहे हैं अर्जुन को, तो जो बात कर रहे हैं काफी हद तक ये दुर्योधन की बात हो रही है। अरे मैंने इतनी संपत्ति प्राप्त कर लिया, अभी वही संपत्ति प्राप्त कर लूंगा, मैंने इनको हरा दिया, अभी मैं उनको भी हरा दूंगा। ये बिल्कुल उसका ही भाव है। और आखिरी 16वें अध्याय का 15वां श्लोक जो है उसमें बोलते हैं याक्षे दास्यामि मोदिष्य इत्यज्ञान विमोहितः, कि मैं यज्ञ करूंगा, मैं दान दूंगा और फिर मैं भोग करूंगा। क्या होता है कि जो लोग माइट इज राइट, जो इससे जीते हैं कि मैं शक्ति प्राप्त करूंगा और शक्ति से मैं अपनी जो सत्ता सब पे ला दूंगा, पर इससे लोगों को संतुष्टि नहीं मिलती है। अभी शक्ति मिल गई मुझे, पर मुझे आदर भी चाहिए, और लोग आदर भय से देते हैं, अच्छा है वो, पर आई वॉन्ट पीपल टू सी मी एज अ गुड पर्सन। आई मे बी अ बैड पर्सन, मैं बुरा व्यक्ति हो सकता हूं, पर लोगों को लगना चाहिए मैं अच्छा व्यक्ति हूं। इसलिए कई बार क्या होता है, जो लोग बहुत बुरा कार्य करते हैं वो भी कभी दान दे देते हैं, कुछ धार्मिक कार्य कर देते हैं, और फिर जो करते हैं वो बहुत विजिबली करते हैं, वो सारी दुनिया को दिखाने के लिए करते हैं। भगवान आगे बोलते हैं 16वें अध्याय के 17वें श्लोक में, यजन्ते नाम यज्ञैस्ते, वो भगवान के नाम का यज्ञ नहीं करते हैं, वो यज्ञ नाम के लिए करते हैं। वो नाम फेम के लिए जो है, पॉपुलैरिटी के लिए वो यज्ञ करते हैं। तो अभी दुर्योधन ने जब दिया तो तभी क्या हो गया, वह सोचा कि युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ किया है तो मुझे भी वैसे करना है, उसको इतना आदर मिला था। तो फिर ब्राह्मणों ने बताया कि पिछला जो राजसूय यज्ञ जिसने किया है, अगर वो जीवित है
तो तुम राजसूय यज्ञ नहीं कर सकते। तो पर मुझे तो यज्ञ करना है। तो फिर ब्राह्मणों ने बताया कि दूसरा एक यज्ञ है, एक वैष्णव यज्ञ है, और वह राजसूय यज्ञ के समान ही है, वो तुम कर सकते हो। अभी दुर्योधन के विष्णु के प्रति कोई भक्ति नहीं थी, पर उसने बड़े ठाट बाट से बड़ा है वो वैष्णव यज्ञ किया। तो फॉर हिम द यज्ञ वॉज नॉट अ स्पिरिचुअल एक्टिविटी, इट वॉज अ सोशल एक्टिविटी। यज्ञ किस लिए किया था? कि आध्यात्मिक प्रगति करनी है, भगवान को प्रसन्न करना है, नहीं, वो दुनिया को दिखाना है कि मैं कितना धनवान हूं, मैं कितना गुणवान हूं। तो यजन्ते यक्षे दास्यामि मोदिष्य, मैं यज्ञ करूंगा, मैं दान दूंगा और लोग मेरी वाह वाह करेंगे, कितना अच्छा व्यक्ति है। तो ये आसुरी प्रवृत्ति का भाव है। तो जो क्या है कि जन्म से भी दुर्योधन जो था, विदुर, जब उसका जन्म हुआ तो विदुर ने कहा कि क्या है कि ये जो व्यक्ति है, ये तुम्हारा पहला बच्चा जो है वह, उसकी प्रवृत्ति असुरी है, तुम उसको त्याग दो। भाई कोई भी माता पिता को बोले कि अपने बच्चे को त्याग दो, कौन त्यागने वाला है? ये आउटरीजियस है, ये नहीं कर सकता कोई भी। पर विदुर ने क्या बोला उनको कि तुम केवल एक पिता नहीं हो, तुम राजा भी हो, और अगर राजा कोई होता है तो मतलब उसका जो बेटा होगा वो युवराज होगा, बाद में राजा बनेगा। तो अगर असुरी प्रवृत्ति है किसमें, और असुरी प्रवृत्ति के व्यक्ति के पास शक्ति आती है, तो फिर वो बहुत खतरनाक हो जाता है। कोई बहुत गुस्सा आता है किसी को, और जो गुस्सा करने वाला व्यक्ति है उसको कहीं से मशीन गन मिल जाता है, तो वो क्या हो जाएगा, वो किलिंग मशीन बन जाएगा एक तरह से। ये तो क्या है कि अगर अंदर से क्रूरता है और बाहर से शक्ति मिल जाती है तो वह बहुत ही डेडली कॉम्बिनेशन है। तो क्या है कि जो आउटर पावर अगर किसी को मिल जाता है, तो जो माइट इज राइट बोलते हैं, पर आउटर पावर प्लस इनर क्रूअल्टी, ये सबसे घातक बन जाता है। तो अभी जो हमने शुरुआत में बोला प्रकृति और विकृति, उसको हम एक डायग्राम के रूप में देख सकते हैं कि एक है पावर, पावर मतलब माइट, पावर यस एंड पावर नो, यस पावर है या पावर नहीं है। दूसरा है किसी के पास काइंडनेस या वर्च्यू है, वर्च्यू मतलब अच्छे गुण हैं, हम यहां से कहते हैं काइंडनेस है, सर्विस एटीट्यूड है, जो भी अलग अलग गुण है ये है। और किसी में वाइस, दुर्गुण है, एक हो सकता है क्रूअल्टी है। तो अभी क्या है, जो अगर किसी में के पास शक्ति है और सद्गुण है तो ये क्या करेगा, दिस कैन द मोस्ट गुड, बहुत कल्याण कर सकता है व्यक्ति। अगर किसी के पास सद्गुण है पर शक्ति नहीं है तो क्या है, वो थोड़ा बहुत अच्छा कर सकता है। कोई डॉक्टर है, ज्यादा पैसा कमाने की इच्छा नहीं है, वो गरीब लोगों को फ्री मेडिसिन मिलना चाहता है, फ्री दवा ट्रीटमेंट मिलना चाहता है, पर वो डॉक्टर को ज़्यादा लोग जानते नहीं है, वो डॉक्टर को कोई चैरिटेबल कॉज को सपोर्ट नहीं करता है, तो डॉक्टर थोड़ा बहुत ही काम कर पाएगा। पर अगर वो डॉक्टर को कोई सपोर्ट करता है, उसको पावर मिलता है, तो वो और कार्य कर सकता है। तो अभी अगर किसी के पास पावर है और क्रूअल्टी है तो तभी मोस्ट हार्म, सबसे ज्यादा खतरनाक कार्य करेगा। और अगर नहीं है तो क्या है, लिटिल हार्म। अभी क्रूरता है पर शक्ति नहीं है। तो विदुर ने क्या बताया था कि दुर्योधन का जो जन्म हुआ है वो यहां पे जन्म हुआ है, तो उसको त्याग करो, मतलब ऐसे नहीं कि उसको मार डालो, पर उसको तुम त्याग दो ताकि वो ऐसी परिस्थिति में ना हो कि अपनी क्रूरता का वो दुरुपयोग कर पाए, या क्रूरता उसमें है, वो स्वभाव है, उसको अगर शक्ति मिल जाएगी तो जरूर दुरुपयोग हो ही जाएगा वो। तो विदुर का ये एडवाइस था पर वो स्वीकार नहीं किया। अभी विदुर हमेशा ये चेतावनी दे रहे थे, भी जो भीष्म जो थे वो बार बार बोला करते थे दुर्योधन को
कि तुम सद्गुण में आ जाओ, तुम सद्गुण स्वीकार करो, तुम धर्म के अनुसार जीवन जियो। पर धृतराष्ट्र ने विदुर की बात नहीं मानी और दुर्योधन ने भीष्म की बात नहीं मानी। तो क्या है, दुर्योधन यहीं पे रह गया। तो यहां पे पहली चीज है कि हम सबका जन्म एक प्रकार से होता है, उसको हम परिवर्तित नहीं कर सकते हैं। पर उसके बाद में क्या होता है कि हमारे पास there are some things we can change and there are some things which we can't change। तो क्या हम बदल सकते हैं? तो तीन चीजें हैं हमारे पास। क्या है कि अपब्रिंगिंग जो है, किस प्रकार की जो संस्कृति आती है वो कहाँ से आती है। वो संस्कृति जो कल्चर आता है, संस्कृति कहाँ से आती है? सबसे पहले अपब्रिंगिंग से आती है। तो जो समाज में जो माता पिता की जिम्मेदारी है, उससे बड़ी जिम्मेदारी किसी की नहीं होती है। एक जैसे गुरु की जिम्मेदारी होती है, पर एक व्यक्तिगत स्तर पे जो फैमिली में होता है, माता पिता बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। और वो अगर नहीं है, अगर वो गैर जिम्मेदार है या एब्सेंट है, तो फिर धीरे धीरे सोसाइटी जो है डिसफंक्शन की ओर चले जाता है। और दुर्भाग्यवश अभी ये कुछ हद तक पाश्चात्य देशों में हो रहा है, फैमिलीज डिसरप्ट हो रहे हैं और उसके कारण बच्चे जो होते हैं, तो बच्चे लोग पैदा ही नहीं करते हैं, या फिर बच्चों के ओर दुर्लक्ष्य होता है। फिर उनके जो है, अभी बच्चे जो किस प्रकार के बनेंगे वो पूरी तरह से माता पिता नियंत्रित नहीं कर सकते, क्योंकि हर एक की व्यक्ति की स्वेच्छा है, पर माता पिता का प्रभाव काफी होता है। तो पहला है अपब्रिंगिंग, दूसरा है एसोसिएशन। तो अभी दुर्योधन के जीवन में दुर्भाग्यवश क्या हुआ, उसका जो अपब्रिंगिंग था, उसके क्या था, वीक पेरेंट था। जो उनके पिता है बुरे नहीं थे पर कमजोर थे। अभी आजकल ऐसे भाव होता है कि हमें हमारे बच्चों को बहुत प्रेम देना चाहिए। हाँ, जरूर प्रेम देना चाहिए, पर जब बच्चे बड़े हो रहे हैं तो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स दैट अ ग्रोइंग चाइल्ड नीड्स टू हियर इज नो। नहीं, तुम ये नहीं कर सकते। अगर मान लीजिए कोई बच्चा है, वो अपने घर में बैठ के खाना खा रहा है, तो उसके प्लेट में खाना खत्म हो जाता है, वो अपनी बहन से के प्लेट से खाना खाने लगता है। तो अगर माता पिता बोले तुमको और खाना चाहिए तो हमको देंगे, उसके प्लेट से मत खाओ, क्या फर्क पड़ता है, हम सब परिवार ही किसी और के प्लेट से खा लेते हैं। ठीक है, वो ठीक है, अभी लगता है क्या बड़ी बात है, 5 साल का बच्चा है, पर 20 साल के आगे फास्ट फॉरवर्ड करो और वो अभी एक कॉर्पोरेट डिनर में है और उसके प्लेट में खत्म हो गया, किसी और के प्लेट से लग जाएगा। तो क्या है, जो है बच्चों को बाउंड्रीज सिखाना बहुत जरूरी है। तो जब नो बोलते हैं, नो जो है इट इज नॉट डिप्राइवेशन। कोई नो बोल रहे हैं मतलब क्या रहे, मेरे बच्चे को मैं ये दे नहीं रहा हूं, वो नहीं दे रहा हूं, ऐसे नहीं है। नो का ये भाव नहीं, नो का क्या है, द इंपॉर्टेंस ऑफ बाउंड्रीज, कि हम जो बर्ताव करते हैं, कैसे बर्ताव करना है, कैसे बर्ताव नहीं करना है। जैसे मैं बताया था कि क्या प्रकृति का एक स्वभाव होता है। प्रकृति का क्या स्वभाव है कि नैसर्गिक रूप से मेरे पास शक्ति है, मैं कर सकता हूं तो मैं करूंगा। तो फिर वो प्रकृति को सीमाओं में रखने के लिए जो पेरेंट्स का एक जिम्मेदारी होता है कि बच्चों को बाउंड्रीज सिखाए। अबे केवल बाउंड्रीज नहीं सिखाना है, नहीं 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 बोलना है, हमें हाँ भी बोलना है, उनको स्नेह भी देना है, पर ये बाउंड्रीज सिखाना बहुत जरूरी है। और धृतराष्ट्र ने ये कभी नहीं किया। दुर्योधन वो इतनी ईर्ष्या हो गई भीम से कि भीम को जहर देके मारने का प्रयास किया। फिर उसके बाद में सारे पांडवों को जलाने का प्रयास किया। अभी धृतराष्ट्र को पता था क्या हो रहा है, पर रोका नहीं। फिर बाद में तो जो जुआ का षड्यंत्र हुआ पूरा, द्रौपदी के साथ दुर्व्यवहार हुआ, वो सब धृतराष्ट्र के सामने हुआ, कुछ भी नहीं किया उसने। तो क्या है, ये अपब्रिंगिंग से क्या होता है, एक तरह से हमें बाउंड्री, बहुत कुछ मिलता है पर एक चीज है, बाउंड्रीज मिलती है। तो बाउंड्रीज हो गए तो क्या होगा, वो प्रकृति जो है वो विकृति की ओर नहीं जाएगी। बाउंड्रीज के द्वारा वो कम से कम वो एक सीमाओं में रहेगी। पर बाउंड्रीज ही महत्वपूर्ण नहीं है, बाउंड्रीज से व्यक्ति नीचे नहीं जाएगा।
पर क्या है, एक और महत्वपूर्ण चीज है कि जो व्यक्ति को बॉन्ड्स जरूरी है। बॉन्ड्स मतलब क्या, कि हमें ऐसे संबंध बनाने हैं जिससे कि हमारे हम में जो अच्छाई है वो बढ़े। जो बॉन्ड्स का पॉइंट है ये एसोसिएशन में भी आता है। तो मैं एसोसिएशन साधारणतः हम ये स्पिरिचुअल संघ में बोलते हैं, पर एसोसिएशन ब्रॉडली क्या है, इट कम्स अंडर रिलेशनशिप्स। तो हमें संबंध जरूरी है। तो अब ये संबंध होते हैं, ये दो प्रकार से हो सकते हैं। अच्छे संबंध हो सकते हैं, बुरे संबंध हो सकते हैं, हेल्दी रिलेशनशिप्स एंड अनहेल्दी रिलेशनशिप्स। तो अभी क्या है, अभी बच्चा जो जन्म हुआ है, माता पिता ने अच्छी परवरिश की है, पर उसके बाद में वो दुनिया में जाने वाला है, हॉस्टल में रहेगा या फिर कहीं नौकरी के लिए जाएगा, कहीं शिक्षण के लिए जाएगा, तो वो बाकी संग करने वाला है। तो तभी क्या होता है, जो हेल्दी रिलेशनशिप्स, अभी रिलेशनशिप्स कैसे हो सकते हैं, हेल्दी जब होते हैं उसका दो लक्षण होते हैं हेल्दी रिलेशनशिप्स का। सबसे पहला क्या है कि द टू पीपल अगर है, दे कम क्लोजर एंड बिकम बेटर, कि अगर दोनों एक दूसरे के और करीब आ रहे हैं और दोनों अच्छे बन रहे हैं। अगर हम देखते हैं इसको, जो रिलेशनशिप है कि जो संबंध है उसमें हम कम क्लोजर या गो फर्दर, एक दूसरे करीब आ रहे हैं, एक दूसरे दूर जा रहे हैं। दूसरा है कि बिकम बेटर, मैं तुम्हारे साथ, तुम्हारे कारण मैं अच्छा बनता हूं और मेरे कारण तुम अच्छे बनते हो। तो जो सही में अच्छे संबंध है वो कहाँ होते हैं, उसमें दिस इज द बेस्ट रिलेशनशिप। ये जो है ये हेल्दी रिलेशनशिप का लक्षण है। प्रभुपाद जी बोलते हैं इस्कॉन के जो उद्देश्य है उनमें से एक उद्देश्य है टू ब्रिंग ऑल पीपल क्लोजर टू ईच अदर एंड क्लोजर टू कृष्ण, कि हम एक दूसरे करीब आए और भगवान के करीब आए। भगवान के करीब आए मतलब हम और शुद्ध हो जाएंगे, हमारा चरित्र और अच्छा बन जाएगा। तो अभी कभी कभी ऐसे हो सकता है कि हम किसी के करीब आते हैं, पर करीब आने से हम और बुरे बन जाते हैं। तो कैसे हो सकता है ये, अगर हम देखते हैं कि जो दुर्योधन था वो शकुनी के करीब आ गया, उससे क्या हो गया, वो करीब आ गया पर करीब आने से वो और बुरा बन गया। तो अभी कुछ लोगों से दूर जाने से हम और बुरे बन जाते हैं। अभी दुर्योधन जो था वह उसी परिवार में था जहां पे विदुर थे, जहां पे भीष्म थे, पर क्या है उनसे वो दूर चला गया और दूर जाने से वो क्या हो गया, वो और बुरा बन गया। तो अभी जो है किसी के दूर जाने से व्यक्ति अच्छा बनता है। वो कब होता है, जो व्यक्ति, अब ये वास्तव में कब होता है, धृतराष्ट्र और दुर्योधन, जब, मतलब क्या मतलब है इसका, कि जब दुर्योधन का वध हो जाता है, कि मृत्यु जाती है, उसके बाद में जब विदुर उसके जीवन में आते उपदेश देता है तो वो सुन पाता है। तो क्या है, कभी कभी कुछ लोग होते हैं वो हमारे जीवन में वी थिंक दे आर आवर कंसर्न बट दे आर नॉट आवर कंसर्न, दे आर आवर कैंसर। वो क्या है, हमको लगता है मैं इनकी परवाह कर रहा हूं, पर वास्तव में उनकी परवाह करते करते हम लापरवाह होते जाते हैं, हमारा चरित्र विकृत हो जाता है। तो ये समझना इतना आसान नहीं है। तो यहाँ पे दुर्योधन वॉज नॉट मेंट टू बी हिज कंसर्न, कंसर्न जरूरी है, पर क्या होता है वो एक तरह से उसके लिए कैंसर बन गया था। तो अभी जो अच्छे संबंध है हमें यहाँ पे आने हैं, वो कौन, हमें ऐसे बॉन्ड्स बनाने हैं जिससे कि उससे मैं अच्छा बनता हूं और तुम अच्छे बनते हो। अभी एक तरह से पेरेंटिंग जब होते हैं तो पेरेंट्स मेक चिल्ड्रन इज अ मिरेकल ऑफ नेचर, चिल्ड्रन मेक पेरेंट्स इज अ मिरेकल ऑफ कल्चर। मतलब क्या है कि अभी माता पुरुष स्त्री संग करते हैं, उससे बच्चा होता है। अगर हम देखते हैं किस तरह से बच्चा होता है, वो एक निसर्ग की एक मिरेकल है। वो अभी उसमें इतने सारे खतरे होते हैं, अभी बच्चा वो
निसर्ग का एक चमत्कार है, पर वो एक निसर्ग के स्वाभाविक रूप से होता है। सब जीव जो है अलग अलग योनियां जो है संतान उत्पन्न कर रहे हैं। पर जब बच्चा होता है तो बच्चा होने के बाद क्या होता है, माता पिता को और जिम्मेदार बनना पड़ता है। तो कैलिफोर्निया में क्या हुआ कि एक ऐसे रूल बनाया, अभी शायद भारत में भी ऐसे रूल होगा कि कार में जो छोटे बच्चे होते हैं वो माँ की गोदी पे नहीं बैठ सकते, और बच्चों के लिए छोटा सीट। इंडिया में रूल है ऐसे कि कार सीट का नहीं रूल नहीं है। जो अमेरिका में ऐसे रूल होता है कि छोटे बच्चे जो है वो कार सीट पे बैठेंगे और वो कार सीट पीछे रहेगा, ताकि अगर कुछ एक्सीडेंट भी हो जाएगा, जो बच्चे होते हैं उनको पीछे कार सीट पे बैठा होता है, क्योंकि उनका शरीर कोमल होता है, एक्सीडेंट नहीं हो जाएगा तो। और तो अभी क्या हो गया, कई बार ऐसे हो गया कि माता पिता आगे बैठे हैं और कहीं शॉपिंग मॉल जा जाते हैं, भूल जाते हैं कि बच्चा पीछे है। फिर बच्चा जो है वो कार में ही है, कार पूरे विंडोज वगैरह बंद हो जाते हैं, तो फिर क्या है, उसको घुटन हो जाएगा। तो फिर कोई और पासर बाई कोई जा रहा है, वो देखता है बच्चा यहाँ पे है, वो तो कांच को तोड़ता है, अलार्म बजाता है। तो ऐसे कुछ बार हो गया वो। तो फिर वो कैलिफोर्निया में सरकार ने ऐसा नियम बनाया कि सारे कारों में हम एक अलार्म सिस्टम इंस्टॉल करेंगे कि अगर वो बच्चे के कार सीट पे अगर वजन है और सारे दरवाजे बंद है और आगे की सीट पे कोई नहीं है, तो फिर क्या होगा, वो अलार्म बजने लग जाएगा। तो अभी ये जो अलार्म है वो बजना इतना आसान नहीं, क्योंकि उसको आगे का सीट, पीछे का सीट, दरवाजा बंद है, सब कुछ सेंस करना पड़ेगा। तो अभी उससे क्या हो गया, कार का कॉस्ट और बढ़ गया। तो फिर बहुत से लोगों ने प्रोटेस्ट करने लगे। अगर कोई ऐसे पेरेंट्स है जो अपने बच्चों को भूल जाते हैं, तो उनको भूल जाना चाहिए कि बच्चे बनाना है मुझे। पेरेंट्स हु फॉरगेट देयर चिल्ड्रन शुड नॉट बी पेरेंट्स। कि पेरेंटिंग जो है एक सीरियस रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो क्या है कि अगर व्यक्ति जब बच्चे जाते हैं तो उसको जिम्मेदार बनना पड़ता है, माता पिता को जिम्मेदार बनना पड़ता है। तो माता पिता बच्चों की जिम्मेदारी से उनकी भी वो मैच्योर होते हैं, और फिर वो मैच्योर हो गए तो बच्चों को भी अच्छा बनाते हैं। तो क्या होता है, ये हेल्दी रिलेशनशिप से हम अच्छे बनते हैं, दूसरों को भी अच्छा बनाते हैं। तो हमें जो एसोसिएशन है ऐसे चुनना है जिससे कि हम वास्तव में हम संस्कृति की ओर जाए और विकृति की ओर न जाए। तो दुर्भाग्यवश आजकल के समाज में ऐसा संग जो है वो मिलना इतना आसान नहीं है। तो एक तरह से विकृति विश्व के इतिहास में हमेशा से रही है, पर विकृति को भूतकाल में कभी ग्लैमराइज नहीं किया गया है। जो विकृति है वो विकृति है, पर उसको ग्लैमराइज करना, उसको अच्छा बताना, ये जो है ये गलत है। न केवल ये गलत है, ये डेंजरस है। अभी कैसे है, कोई अगर मूवी में कोई बहुत अश्लील पिक्चर्स वगैरह, अश्लील सीन्स है, तो उसको क्या बोलते हैं, ये बोल्ड सीन्स है। बोल्ड का मतलब क्या है, सब लोग बोल्ड बनना चाहते हैं। मतलब अगर अश्लील सीन नहीं दिखा रहे थे क्या वो सब कॉवर्ड हो गए? नहीं, ऐसे नहीं है। वो अभी एक भारत में बड़ा पॉडकास्टर है, उसने कुछ ऐसे बड़ा ही अश्लील जोक कर दिया, और वैसे क्या है कि वो जो उसने अश्लील वो बात की, उसका विचार करना ही बुरी बात है, पर विचार करके वो बोलना, किसी के मन में मन हमारा बड़ा अनियंत्रित होता है, अनेक प्रकार के विचार आ सकते हैं मन में, पर क्या है वो बोलना, ऊपर से पब्लिकली बोलना, ये क्या है, एक अंदर से विकृति है। पर अगर किसी ने बोल दिया और सब लोग वो हंस रहे हैं, तो क्या ये केवल अंदर से विकृति नहीं है, ये बाहर से भी विकृति आ गई है। ये डेंजरस है। तो अभी जो ऐसे होता है आजकल का जो समाज है, तो एक तरह से हम कह सकते हैं कल्चर, हर जगह पे कोई ना कोई तो कल्चर होता है, पर कभी कभी ऐसा कल्चर होता है वो संस्कृति को नहीं ले जाता है हमको, वो विकृति की ओर ले जाता है। तो कोई ऐसी जगह है जहाँ पे कोई ऐसा कॉलेज है, हॉस्टल है,
जहाँ पे सब लोग शराब पीते हैं, सब लोग नशा करते हैं, तो फिर क्या होता है, जब लोग ऐसे नशा करते हैं तो फिर अगर वहाँ पे जाता है कोई शराब नहीं पीना चाहता है, कोई कोई ड्रग्स नहीं लेना चाहता है, तो फिर क्या, उसको लोग क्या तुम तो माँ का दूध पीने वाला बच्चा है, उसको कोसने लगते हैं, उसको बुरा बोलने लगते हैं। तो फिर जो ऐसे जो समाज में विकृति को ग्लैमराइज करते हैं, तो फिर वो समाज का पतन बहुत तेजी से होने लगता है। तो इसलिए भले हम समाज का जो प्रवाह है इसको शायद नहीं बदल सकते हैं, पर हम हमारे संग को बदल सकते हैं। हम ऐसे संग में रह सकते हैं जिससे कि हमें जो है जो सद्गुण और बढ़े। जो हमें बच्चों को हम ऐसे संग में रखने का प्रयास कर सकते हैं जिससे उनका सद्गुण और बढ़े। तो ये जो है एसोसिएशन बहुत महत्वपूर्ण है। और फिर अल्टीमेटली हमारा अपब्रिंगिंग हमारे नियंत्रण में नहीं है, हमारा एसोसिएशन ये कुछ हद तक हमारे नियंत्रण में है, पर आखिरी जो है अल्टीमेटली जो है ये हर एक व्यक्ति को अपना डिसीजन करना होता है कि अल्टीमेटली कि हम में कुछ प्रवृत्तियां हो सकती है, पर जो उन प्रवृत्ति के अनुसार मुझे कार्य करना है ऐसा जरूरी नहीं है। हम सब में स्वेच्छा भी होती है। जब अभी दुर्योधन के साथ जब कृष्ण आए शांति दूत के रूप में, दुर्योधन को राज्य चाहिए था, कृष्ण ने कहा तुमको राज्य चाहिए, तुमको पांडवों से बड़ा राज्य चाहिए, ठीक है तुम पांडवों से बड़ा राज्य रख लो, तुम कौरवों को क्या सिर्फ तुम पांडवों को सिर्फ 5 गांव दे दो, 5 शहर भी नहीं बोले, 5 गांव दे दो। तो एक तरह से भी क्या है, उसको जो चाहिए था भौतिक स्तर पे, उसको क्या चाहिए था, पांडवों का राज्य चाहिए था, पांडवों से ज्यादा राज्य चाहिए था, पांडवों से ज्यादा भगवान उसको सब कुछ दे रहे थे, पर फिर भी उसने स्वीकार नहीं किया। तो अल्टीमेटली हर एक व्यक्ति को डिसीजन करना होता है, और ये डिसीजन जो है हम अलग अलग परिस्थिति में करते हैं, पर हमारे शायद पूर्व जन्म से जो संस्कार हो गए वो प्रतिकूल हो गए, शायद हमारा अपब्रिंगिंग अच्छा नहीं होगा, पर हमें अभी भी डिसीजन कर सकते हैं। तो थोड़ा सा जहाँ पे है वहाँ से हम एक अच्छा चुनाव करते हैं, तो उससे अगला अच्छा चुनाव करना आसान हो जाता है। एक बार हम सत्संग में आ जाते हैं, एक बार भगवान का नाम का कीर्तन करते हैं, जप करते हैं, उससे एक बार करने से क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है। उससे क्या हो रहा है, वो एक बार वो संस्कार हो रहा है, वो मन पे उसकी छवि हो रही है, और वो धीरे धीरे उससे बढ़ेगी। तो जो डिसीजन है इसमें I'll make 2 points and I'll conclude with this, कि जब हम कोई डिसीजन करते हैं तो डोंट डिवैल्यू स्मॉल स्टेप्स, कि छोटी जब चीजें करते हैं हम, कोई अभी रेजोल्यूशन बनाता है कि मैं रोज भगवत गीता पढ़ूंगा आधे घंटे के लिए, और फिर हम 15 दिन के लिए पढ़ते हैं, फिर ये काम आ जाता है, वो काम आ जाता है, नहीं हो पाता है, बोलते हैं मैं तो नहीं पढ़ पाऊंगा, छोड़ दो। नहीं, 15 दिन के लिए आपने किया, ये अच्छी बात है, जो कर पाए वो अच्छा है। तो जब भगवान बोलते पत्रम पुष्पम फलम तो यम्यो में भक्त्या प्रयच्छति, छोटी चीज भी आप अगर मेरे लिए करते हो तो मैं उसकी सराहना करता हूँ। तो हमारी परिस्थिति शायद बहुत ही कंस्ट्रिक्टेड हो सकती है, रिस्ट्रिक्टेड हो सकती है, पर उसमें जितना हम कर सकते हैं, छोटा सा भी क्यों ना चीज हो, वो करो, डोंट डिवैल्यू दैट। उससे शायद बाहर के तरह से ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है, ऐसे दिखने वाला नहीं है, पर अंदर से वो मन में वो संस्कार हो रहे हैं। और जो डिसीजन है ये खास करने में क्या होता है, सीक डिवाइन ग्रेस, सीक ग्रेस, भगवान की जो कृपा है उसको हम प्राप्त करने का प्रयास कर सकते हैं। तो जो भगवान की कृपा है वो क्या करती है, वो एक तरह से गेम चेंजर बन जाती है। वो एक आखिरी उदाहरण के साथ मैं ये ग्रेस कैसे काम करता है, कृपा कैसे काम करती है, वो समझा के मैं क्या, अगर मान लीजिए अभी ये पृथ्वी है और हम किसी रॉकेट से पृथ्वी से बाहर निकलने का प्रयास करते हैं, तो जो पृथ्वी के बाजू में क्या होता है, अर्थ का ग्रेविटी पुल होता है। तो जो इसका जो ग्रेविटी पुल होता है, अर्थ का जो ग्रेविटी फील्ड होता है,
तो उससे क्या होता है, उससे बाहर जाने के लिए बहुत प्रयास करना पड़ता है, बहुत एफर्ट लगता है यहाँ पे। इसके बाहर चले जाएंगे तो फिर बाद में जो मोमेंटम है उससे आगे बढ़ते रहेगा, पर इसके बाहर जाना बड़ा मुश्किल होता है। अगर मान लीजिए ये बाहर निकल के कोई और ग्रह है, जैसे चंद्र है, मंगल है, उस ग्रह के गुरुत्वाकर्षण में पहुंच जाते तो वहां पे क्या होगा, रैपिड हो जाएगा वापस। तो अभी हम हमारे प्रयास से हम जो हमारे जो प्रकृति से विकृति हो जाने की ग्रेविटी है उसका हम प्रतिकार कर सकते हैं, और हमें करना जरूरी है। पर अगर हम भगवान की भक्ति कर रहे हैं तो वास्तव में हम क्या कर रहे हैं, हम इस पृथ्वी पर है, पर मान लीजिए हम यहाँ पर होते हुए जो है, हम इस भौतिक जगत में होते हुए भगवान को हम करीब लाके लेते हैं। तो क्या है, मैं अगर यहाँ पर हूँ तो मैं उसी समय में एक है कि मैं इस पृथ्वी के ग्रेविटी पुल में हूँ, पर साइमल्टेनियसली मैं भगवान के ग्रेविटी पुल में भी आ जाता हूँ। तो क्या होता है कि हमारा जो ग्रोथ होता है, जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है, वो दो प्रिंसिपल से होता है। एक है पुश प्रिंसिपल और दूसरा है पुल प्रिंसिपल। तो पुश मतलब क्या है, ये सारा ह्यूमन एफर्ट है, पर पुल क्या है, ये भगवान की कृपा है। तो कभी कभी हमें लगेगा कि मैं जो कर रहा हूँ, मुझे गुस्सा आते रहता है पर जाता ही नहीं है, मुझे ईर्ष्या आती है, कुछ समय के लिए चली जाती है, वापस आ जाती है, क्या परिवर्तन होने वाला है? तो हमें पुश करते रहना है। और जब पुश कर रहे हैं, केवल पुश नहीं करना है, हमें क्या करना है, हमें भगवान की प्रार्थना करनी है। भाई जब भी हम करते हैं, कीर्तन करते हैं, वो रीति रिवाज के रूप में नहीं करना है, हमें भगवान को पुकारना है, भगवान की कृपा याचना करनी है। तो जब भगवान का सानिध्य हमारे जीवन में महसूस होने लगता है हमको, तो उससे जो परिवर्तन हो जाता है, उससे जो संस्कार बदल जाते हैं, उससे जो मन में छवियाँ एक सकारात्मक हो जाती है, वो एक ड्रामेटिक गेम चेंजर होता है वो। तो हम सबको ये कुछ अनुभव होगा कि शायद हमारे कुछ आदतें थी, हम छोड़ने का प्रयास कर रहे थे और छोड़ नहीं पा रहे थे, पर हम भक्ति करने लगते हैं तो फिर वो छूट जाते हैं। तो शायद कोई बहुत से हम में से हो गए, पहले मांस खाया करते थे और हम भक्ति करने लगते हैं, तो फिर बाद में हम किसी ट्रेन में जा रहे हैं, प्लेन में जा रहे हैं, बाजू में कोई मांस खा रहा है, तो शायद तो मांस खाने की जो इच्छा होती है वो बहुत कम किसी भक्त में आ जाएगी। क्या है, कृष्ण में हायर टेस्ट है कि नहीं हमें पता नहीं है, पर कृष्ण प्रसाद में तो हायर टेस्ट है। तो जब हम भगवान का प्रसाद ग्रहण करने लगते हैं तो क्या होता है, वो इच्छा चल जाती है। तो हम खुद देखेंगे कि कुछ इच्छाएं हैं, कुछ जो ग्रेविटी पुल था कुछ चीज़ों का, वो बहुत स्ट्रांग था पहले, पर वो भी चला गया है। तो उससे हमें एनकरेजमेंट लेना है, उससे हमें हमारा आत्मविश्वास बढ़ाना है कि बाकी चीज़ों में जहाँ पे अभी नहीं हुआ है परिवर्तन, वहाँ पे भी परिवर्तन धीरे धीरे ज़रूर हो जाएगा। तो भगवान की जो कृपा है, जब हम भक्ति करते हैं, केवल हम प्रयास नहीं कर रहे हैं, हम भगवान की कृपा की याचना भी कर रहे हैं। और जब हम ये करते हैं, ये जगत में होते हुए भी हम कृष्ण के ग्रेविटी पुल को इन्वोक कर सकते हैं, और उसके द्वारा हम जो हमारे अनर्थ है, हमारे जो पूर्व संस्कार है, उनके परे जा सकते हैं। तो सारांश में आज हमने क्या चर्चा की उसके बारे में चर्चा करेंगे अभी। तो हम आज चर्चा टॉपिक क्या था हमारा, कि कैसे हम प्रकृति से हम संस्कृति की ओर जा सकते हैं। तो प्रकृति के संस्कृति कैसे जाना है उसके बारे में चर्चा थी। तो सबसे पहले हम देखा, इनका डेफिनेशन देखा। तो प्रकृति क्या है, प्रकृति का मतलब है कि इस जगत में शक्ति जिसके पास है वही सही है, और यह एक स्वभाव है, इसको कोई बदल नहीं सकता है। पर संस्कृति का मतलब क्या होता है कि जिसके पास माइट है वो वर्च्यू भी रखता है, वो धर्म भी रखता है। माइट प्लस वर्च्यू, वो धर्म रखता है। और जो विकृति क्या है,
हाँ, जो माइट विदाउट वर्च्यू, शक्ति है पर वो बिल्कुल धर्म की परवाह नहीं करता है। तो जो पांडव है वो है उदाहरण माइट विथ वर्च्यू के, जो कौरव उदाहरण है माइट विदाउट वर्च्यू के। तो हमने देखा कैसे कि जो व्यक्ति है, अभी पावर तो जरूरी है, पावर है या नहीं है, और वर्च्यू है या वाइस है किसी में। तो अभी पांडव यहाँ पे थे और कौरव यहाँ पे थे। तो अभी हम सबको, हम कहाँ भी है, हमें यहाँ पे आने का प्रयास करना है। कहीं भी है कि वर्च्यू एंड पावर टुगेदर। तो कैसे आते हैं, हमने उसके लिए 3 चीज़ें देखी। बर्थ जो था कि जो बर्थ से है, जो बच्चे हैं वो क्ले नहीं है, वो सीड है। तो हमें जैसे चाहे वैसे शेप नहीं कर सकते हैं हम, पर हमें समझना है कि इस प्रकार सीड है, फिर उसको गार्डन करना है। तो जो उसके बाद में हम देखा क्या है, अपब्रिंगिंग, जो पेरेंटिंग है, अपब्रिंगिंग है, वो एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। और उसमें क्या है, 2 चीज़ें हैं। एक है बाउंड्रीज, कि माता पिता को अपने बच्चों को प्रेम करना है, पर बाउंड्रीज सिखाना बहुत ज़रूरी है। बाउंड्रीज का मतलब ये नहीं कि डिप्राइव करना है, तो नो बोलना है, वो उसका मतलब नो बोलना है, वो डिप्राइव नहीं करना है। पर बाउंड्रीज क्या है, बाउंड्रीज से जो प्रकृति है वो विकृति की ओर नहीं जाएगी, ये बाउंड्रीज रोकता है। फिर उसके बाद में हम देखा एसोसिएशन। जो एसोसिएशन क्या होता है, हमने देखा यहाँ पे संबंध जो होते हैं वो क्या, अच्छे संबंध का मतलब क्या है कि हाँ, वी कम क्लोजर एंड बिकम बेटर, कि हमें पास में आना है और अच्छा भी बनना है। अगर ऐसे होता है तो ये बेस्ट संबंध है। अगर हम उदाहरण देखें हमने कि अगर हम बुरे बन रहे हैं या दूर जा रहे हैं, तो अलग अलग संबंध हमने देखे कैसे थे। खास करके हम आसुरी प्रवृत्ति देख रहे थे, तो पास आने से बुरा बनना, क्या किसका उदाहरण था, दुर्योधन और शकुनी। दूर जाने से और बुरा बनना, दुर्योधन और विदुर या भीष्म। और दूर जाने से अच्छा बनना, धृतराष्ट्र और दुर्योधन। दुर्योधन से जब दूर चले गए तो धृतराष्ट्र वो अच्छे बन गए। तो अभी हमें क्या करना है, हमें अभी दुर्योधन के जीवन में ऐसे नहीं था, किसी के पास आने से वो और अच्छा बन गए। जो पांडव थे वो सब एक दूसरे के और पास आ गए, बड़ी बड़ी समस्याओं में गए, तो हम पांडव ही कह सकते हैं। वो जो थे वो और करीब आ गए और उससे अच्छे बन गए। वो एक विषय, अलग शब्द विषय है। पर आखिरी जो पॉइंट हमने क्या देखा, जो है डिसीजन। हम सबको फैसला करना है, और डिसीजन में क्या है, 2 प्रिंसिपल्स है। पुश करना है, पुश करते समय डोंट डी वैल्यू, ये छोटी छोटी चीज़ें अगर हम कर पाएंगे तो डोंट डी वैल्यू स्मॉल स्टेप्स। नहीं, इतना सा क्या फर्क पड़ने वाला है उससे, पर उससे फर्क पड़ता है। और पुल का क्या प्रिंसिपल है, पुल मतलब हमें भगवान जो है कृपा से वो गेम चेंजर होता है, सीक ग्रेस। भगवान की हम कृपा करते हैं, मतलब क्या है कि हम इस भौतिक जगत में हैं, पर उसमें ही इस जगत का गुरुत्वाकर्षण है। पर अगर हम भगवान की आराधना करते हैं, भगवान की पूजा करते हैं, तो हम यहाँ पे होते हुए भगवान का जो गुरुत्वाकर्षण है उससे हम ऊपर खींचे जाते हैं। हम इधर खींचे जा रहे हैं तो हम उधर भी खींचे जा सकते हैं। और भगवान की शक्ति इसी है कि उससे हमारा परिवर्तन ज़रूर हो सकता है। तो जहाँ भी है, जब हम भक्ति करते हैं, कीर्तन करते हैं, तो हमारा जो प्रवृत्ति है जो उसको परिवर्तित ज़रूर कर सकते हैं। तो हम भगवान से प्रार्थना करेंगे कि हे प्रभु, मेरे जो भी संस्कार पूर्व जन्म से हो, आपकी कृपा से मैं अच्छे संग में रहूं, अच्छे चुनाव करूं और आपके करीब आते रहूं, ऐसी आप मुझ पे कृपा करते रहे। श्री कृष्ण भगवान की। किसी कोई सवाल है? Hare Krishna, Prabhuji, Dandavat Pranam. Prabhuji, many a times we see in corporate,
that people who have power, they have, I mean, power corrupts people, so they have exploitive mentality. So like we discussed here that in nature there is survival of the fittest. So should we fight back to ensure our survival by their whatever the tactics they're employing against us? So should we fight back, or should we totally rely upon the grace of the god to maintain our virtue at that situation? तो अगर कोई हमारा शोषण कर रहा है तो क्या हमें उनके खिलाफ प्रतिकार करना चाहिए? तो अभी ये जो है, दिस इज़ नॉट सो मच अ मैटर ऑफ प्रिंसिपल एज स्ट्रैटेजी. कैसे है कि हमारे लिए क्या महत्वपूर्ण है. अगर वो जॉब हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है तो फिर शायद उस जॉब में हम कॉन्फ्रंट करेंगे उनको. तो अगर वो जॉब महत्वपूर्ण नहीं है, कहीं और जॉब मिलता है हमको, फिर यहाँ पे मुझे कॉन्फ्रंट नहीं करना है, कहीं और चले जाना है, वो भी स्वीकार है. तो पॉइंट क्या है कि हमें, प्रभुपाद जी बोलते हैं बुद्धि का मतलब है कि जो इंटेलिजेंस है उसका मतलब है सी थिंग्स इन प्रॉपर पर्सपेक्टिव. उसका मतलब क्या है, क्या चीज़ें मेरे जीवन में बिग थिंग्स है और क्या चीज़ें स्मॉल थिंग्स है. तो अगर अलग अलग परिस्थिति में कौन सी चीज़ें बड़ी होगी, कौन सी चीज़ें छोटी होगी, वो फ़र्क पड़ सकता है. अगर मुझे नौकरी बहुत ज़रूरी है मेरे लिए, तो वहाँ पे वर्क कल्चर इतना अच्छा नहीं है, पर फिर भी क्या है, वो नौकरी भी छोड़ नहीं सकता उसको भी, तो फिर तभी मेरे लिए नौकरी बिग थिंग बन जाता है. फिर ठीक है, ये सहन कर लूँगा मैं, पर मेरे पास एक्सपीरियंस है, मेरे पास ऑप्शंस है, तो मैं कहीं और करियर ग्रोथ कर सकता हूँ. तो फिर तभी क्या है, जो मेरे मन की शांति जो है, जो एक हेल्दी वर्क एनवायरनमेंट है, वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है. तभी मैं कहीं कहीं जा सकते हैं. तो क्या है, गीता में अगर हम देखते हैं, भगवान 2.14 में टॉलरेंस बोलते हैं, आप ताम तितिक्षस्व भारत. तो जो टॉलरेंस बोल रहे हैं, क्या टॉलरेंस है, क्या उसका मतलब ये है कि कौरवों ने तुम्हारे प्रति इतना अत्याचार किया है, द्रौपदी पर अत्याचार किया, वो सहन कर लो? क्या वो टॉलरेंस का मतलब है? नहीं. टॉलरेंस का मतलब क्या है कि तुम्हें अपना कर्तव्य करते समय भीष्म और द्रोण के खिलाफ युद्ध करना पड़ रहा है और तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा है, पर उसको तुम सहन कर लो. तो टॉलरेंस के पहले 2.13 में भगवान हमें इंटेलिजेंस देते हैं, देहिनोस्मिन यथा देह. तो इंटेलिजेंस के बिना अगर टॉलरेंस होता है तो वो इम्पोर्टेंस हो जाता है, वो जो है वो शक्तिहीनता हो जाती है. जब बुद्धि है उसके बाद में सहनशीलता होती है. तो वो वास्तव में सहनशीलता हमारे जीवन में जो महत्वपूर्ण है उसकी ओर हमें प्रगति करने में मदद करती है. थैंक यू. Prabhuji, a follow-up question for this. So sometimes when we try to be virtuous or when we act in our according to our principles, people mistake that for weakness. तो लोगों को लगता है कि अगर वो like if I'm walking out of a toxic situation, तो लोगों को लगता है कि इसमें तो बल ही नहीं है, शक्ति नहीं है कि ये फाइट बैक कर सकता है. सो उसको कैसे काउंटर करें? या तो उस समय भी हमें देखना है कि क्या हमारे लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि क्या लोगों का जो हमारे बारे में परसेप्शन है वो हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है. कभी कभी हो सकता है कि वो महत्वपूर्ण है और कभी कभी हो सकता है वो महत्वपूर्ण नहीं है. तो उसके अनुसार हमें फैसला करना है. अगर वो परसेप्शन आ रहा है तो उसका, और वो हमारे लिए महत्वपूर्ण है, तो इसको क्या चैलेंज करना, उसको करेक्ट करना पड़ेगा हमको. पर ये लोग क्या सोचते हैं, ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है मुझे, मैं अपना काम करूँगा, लेट माई परफॉर्मेंस स्पीक. तो अगर वो हमारा भाव है, मुझे मेरी मन शांति ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो हमें हमारे इसमें इन रियल लाइफ क्या है कि हमें जो ब्लैक एंड वाइट नहीं होता, काफ़ी हद तक हमें फैसला करना होता है. और हर व्यक्ति को उसके जीवन के परिस्थिति में क्या महत्वपूर्ण है वो खुद फैसला करना होता है, और उसके अनुसार क्या सहन करना है और क्या प्रतिकार करना है वो फैसला करना होता है. ओके, थैंक यू. थैंक यू Prabhuji. लेट मी नो. Hare Krishna. Prabhuji, you mentioned one point regarding association, that when two people go further away, it could become a healthier relation. ऐसे हो सकता है. It could become. हाँ. So there could be situations like this which we can apply. But let's say this situation comes in circumstances where people are very closely knitted together, like a family, like a relation between a parent and a child, or between a husband and a wife. So although they may know that if they go away further, they would improve, but should they actually do that?
And how can they do that? How to practically apply that principle? अभी दो लोगों से दूर जाने से संबंध अच्छा होता है, ये क्या है कि कई बार ये मन की धारणा होती है. सही में ऐसे होता है. कभी क्या होता है कि हम मानव का मन है ना, इट इज मोर ईगर टू फाइंड अ विलन देन फाइंड अ हीरो. क्या होता है कि मेरा जीवन की कहानी में कोई हीरो है, जो मैं हीरो बनूं या किसी हीरो से संबंध जोड़ूं, तो मेरे जीवन की कहानी में विलन कौन है, वो ढूंढने के लिए हम बहुत उतावले होते हैं और उसको दोष देना होता है. तो ये मानव मन का स्वभाव ही एक तरह से है. तो इसीलिए क्या किसी व्यक्ति से दूर जाने से सही में संबंध अच्छा होने वाला है, हो सकता है कभी कभी, पर कई बार वो केवल मन की धारणा होती है. तो sometimes going away can mean simply lowering the expectations from that person. क्या होता है कि ठीक है, ये व्यक्ति का ऐसा स्वभाव है, इस व्यक्ति से मैं इस प्रकार का सपोर्ट नहीं मिलने वाला है मुझे. तो कभी कभी कैसे rather than a physical distance or a legal distance, there can be a greater emotional distance. तो उससे क्या होता है कि उस व्यक्ति से अपेक्षा कम कर देते हैं. तो फिर वो जनरली कोई भी संबंध में फ्रस्ट्रेशन इज अ फंक्शन ऑफ एक्सपेक्टेशन. जितनी अपेक्षा है उतना हमको अपेक्षा पूरी नहीं होगी तो फ्रस्ट्रेशन होता है. तो अगर एक्सपेक्टेशन कम कर देंगे तो शायद क्या हम पता चलेगा कि ठीक है, ये व्यक्ति जितना बुरा मैं सोच रहा था उतना नहीं है व्यक्ति, क्योंकि ठीक है मैं ये व्यक्ति नहीं करने वाला है मेरे लिए, पर ठीक है, पर बाकी कई चीज़ें जो व्यक्ति कर रहा है वो शायद हम देख पाते हैं. तो इसीलिए इट्स बेस्ट टू लोअरिंग एक्सपेक्टेशंस बेसिकली क्रिएटिंग अ इमोशनल डिस्टेंस. तो हम सबकी अपनी अपनी ज़रूरतें होती है, पर कुछ ज़रूरतें हैं, सारे ज़रूरतें एक ही व्यक्ति पूरे करना ऐसा ज़रूरी नहीं है. ये एक प्रॉब्लम है न्यूक्लियर फैमिलीज़ में. क्या होता है कि जो हम संबंध में होते हैं, जो अगर बड़ी कम्युनिटी नहीं है, तो ऑल द रिलेशनल इमोशनल एक्सपेक्टेशंस बिकम सेंटर्ड ऑन वन पर्सन. तो इट कैन बिकम अ बिग प्रॉब्लम. तो विद इन द बाउंड्रीज ऑफ धर्म, जो हम कम्युनिटी में होते हैं, तो हमारी अलग अलग ज़रूरतें जो होती है वो अलग अलग संबंधों से भी पूरी हो सकती है. और उस तरह से जस्ट लोअरिंग एक्सपेक्टेशंस इज़ अ वेरी गुड फर्स्ट स्टेप. और उससे अगर नहीं हो रहा है तो फिर हम आगे देख सकते हैं. बट क्या है कि इट्स जनरली व्हेन वी से गोइंग अवे, ब्रेकिंग अ रिलेशनशिप, स्पेशली जो ऐसा संबंध धर्म के आधार पर बनाया हुआ है, उसको तोड़ना है ना, वो काफ़ी हद तक एस्केप वे होता है वो. तो दैट शुड बी ऑलवेज केप्ट ओनली एज द लास्ट रिजॉर्ट. कई बार क्या होता है कि हमारे जो मन की भावनाएं होती है, वो आज लगता है कि ये संबंध बहुत खराब है, बहुत बुरा है. हमारे जो इमोशंस होती है वो रिवर्सिबल होती है. आज लगता है ये बहुत बुरा है, पर कल कुछ हो जाता है, आपको लगता है ये इतना बुरा नहीं है. पर कई बार क्या होता है, ये रिवर्सिबल इमोशंस के आधार पर हम इरिवर्सिबल डिसीजंस ले लेते हैं. तो ये बहुत खतरनाक होता है. तो ये दूसरों के संबंध में हो सकता है. कभी कभी लोग होते हैं कि उनका मन बहुत दुखी हो जाता है, मुझे ये जॉब नहीं मिला, मुझे एग्जाम में मार्क्स नहीं मिले, तो मैं आत्महत्या कर लूँगा. भी वो बुरा अच्छा नहीं हुआ है, बुरा हुआ है, वो बुरा लग रहा है, वो ठीक है, पर क्या है, वो एक घटना है जीवन में. तो नेवर मेक इरिवर्सिबल डिसीजंस बेस्ड ऑन रिवर्सिबल इमोशंस. हरे कृष्ण प्रभु जी. हरे कृष्णा प्रभु जी. हाँ बोलिए. We are rather fortunate that today you have spoken this behavior science within the framework of Bhagavad Gita. Prabhuji, I have a question that these decisions, these all like when we are honest, truthful, and contentment. Otherwise, how we can understand these things when we are not following the basic principles? And second question is एक सवाल. Okay, तो okay. तो अगर सद्गुण, बेसिक सद्गुण नहीं है, तो क्या हम सही फैसले कर सकते हैं? तो ऐसे नहीं कि 1-0 है. हर व्यक्ति अपने परिस्थिति में फैसला कर रहा है. तो अभी जब मैं अमेरिका में गया था, तो मैं एक अल्कोहलिक्स एनोनिमस का जो शराबी होते हैं छोड़ने का प्रयास करते हैं, उनके गैदरिंग को मैं कुछ लोगों से बात कर रहा था. तो वहाँ पे एक भक्त वहाँ पे प्रचार कर रहे थे. वो भी बताए थे कि जो शराब पीना होता है वो भी सात्विक, राजसिक, तामसिक हो सकता है. मैं बोला ये कैसे संभव है, शराब पीना तो तामसिक हो जाएगा.
पर वो बता रहे थे कि वो हाँ वो तामसिक ही है, पर वो तमोगुण में भी सत्वगुण रजोगुण तमोगुण हो सकता है। कैसे है कि मान लीजिए 4-5 बच्चे हैं, वो एक पार्टी में जा रहे हैं शराब पीने के लिए, तो कार में जाते हैं, वो तो जाते हैं तो पहले से फैसला कर लेते हैं कि आज के दिन तुम ये कार ड्राइविंग कर रहे हो तो ये तुम्हारा तपस्या का दिन है कि तुम वापस ड्राइव करोगे, तुम शराब नहीं पियोगे। तो ड्रिंकिंग इज बैड बट ड्रिंकिंग एंड ड्राइविंग इज फार वर्स। तो जो शराब पी रहे हैं, अगर उनकी इतनी सद्बुद्धि है कि शराब पी के ड्राइविंग नहीं करना है, तो शराब पीना वो एक बाउंड्री को एक सीमा को उल्लंघन कर रहे हैं, पर फिर भी शराब पी के ड्राइव नहीं करना है, वो एक सीमा है, उसका पालन कर रहे हैं। तो क्या है, ऐसे नहीं है कि कोई भक्ति में एक दुर्गुण है मतलब वो दुर्गुण असीमित मात्रा में है। क्या है, दुर्गुण भी हो सकता है, कोई बुरी आदत भी हो सकती है, पर बुरी आदत भी सीमा में होती है। कोई अभी मेरे एक मित्र है, वो बोलते हैं वो जेल प्रीचिंग करते हैं, जेल में प्रीचिंग करते हैं, बोलते हैं कि जेल में भी क्या होता है, सब गुनहगार होते हैं, पर वहाँ पे अगर कोई ऐसे गुनहगार होता है जिसने किसी चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज किया है, तो वैसे गुनहगार जो होते हैं, गुनहगारों को भी बहुत बुरे लगते हैं। वो चाइल्ड सेक्सुअल ऑफेंडर जो होते हैं, उनको सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रखना पड़ता है, उनको अकेले नहीं रखेंगे तो गुनहगार ही उनको मार डालेंगे, क्योंकि तो उनको भी ये बहुत ही गुनास्पद लगता है। तो मेरा पॉइंट ये है कि हम जहाँ भी है वहाँ पे कुछ तो बुद्धि है हमारी, और उसमें हम चुनाव कर सकते हैं। मैं शराब नहीं छोड़ सकता, पर मैं दो ग्लास पीऊँगा, 3 ग्लास पीऊँगा। जो ड्राइविंग कर सकता हूँ ड्राइविंग करूँगा नहीं करूँगा, ये फैसला हम कर सकते हैं। तो शायद हमको गुस्सा आता है, गुस्सा आ जाता है, हम चिल्ला देते हैं, तो जो गुस्से का जो एक तरह से लहर आती है वो शायद 2-3-4 मिनट तक रहती है, फिर उसके बाद में कुछ हद तक सद्बुद्धि जागृत हो जाती है। तो तभी मैं रुकता हूँ, अभी तो गुस्सा कर लिया तो पूरा ही गुस्सा कर लो, नहीं। तो जितनी हम, इसलिए मैं बोला था डोंट डी वैल्यू स्मॉल स्टेप्स। हमारी क्षमता में जितना हम कर सकते हैं उतना अगर करेंगे तो धीरे धीरे वो क्षमता बढ़ जाएगी। okay? Prabhuji, since you are at the apex level of ISKCON, is this agenda of ISKCON to, I mean say, इसको amend करते हैं from time to time to make it more easy, understandable? Because when we read first chapter, in the shlokas, there is an introduction by Sanjay regarding various kings. But some people are under this impression these are also shlokas which will lead us to moksha. So, if possible, can you tell us what amendments have been done in Bhagavad Gita since Srila Prabhupada has written it? What amendments? Yes. थोड़ा टेक्निकल क्वेश्चन है, हम शायद व्यक्तिगत बात कर लेते हैं सेपरेटली, पर जो गीता का कोर संदेश है उसमें कोई अमेंडमेंट्स नहीं हुए हैं। मेनली जो है, कैसे प्रभुपाद जी ने संदेश दिया है, हर जनरेशन में उसको कैसे समझाना है, ये उस जनरेशन की जिम्मेदारी है। क्या होता है कि प्रभुपाद जी बोलते हैं ये शास्त्रों का मैसेज है और ये लोगों का इंटरेस्ट है। तो हर जनरेशन में लोगों के थोड़े इंटरेस्ट अलग होते हैं। तो स्क्रिप्ट, तो रियलाइजेशन मतलब क्या है, टू प्रेजेंट द मैसेज ऑफ स्क्रिप्चर इन अ वे दैट इज इंटरेस्टिंग फॉर द ऑडियंस। कि प्रभुपाद जी बोलते हैं साक्षात्कार का मतलब क्या है कि हम शास्त्रों को समझे और लोगों के इंटरेस्ट, लोगों की जरूरत को समझे, और वो दोनों का संयोग कहाँ हो रहा है वो देखे, उसके आधार पर सिखाए। तो वो हर पीढ़ी में जो भक्त है वो करने का प्रयास कर रहे हैं और वो करते रहेंगे। यस माता जी, कैन लेट मी नो व्हेन टू स्टॉप। प्रभु हरे कृष्णा। आज इस सेशन में मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझती हूँ कि मैं आई और मुझे आपका प्रवचन सुनने का मौका मिला। हम बड़ों के तो बहुत क्वेश्चंस हैं, अनलिमिटेड, उसको सॉल्व करना भी बहुत टाइम लगेगा। बट मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करती हूँ, क्योंकि अभी आपने जिस तरह से एक्सप्लेन किया, बच्चा, उनका एसोसिएशन, देन उनके अपब्रिंगिंग, अगर आप देखेंगे तो यहाँ बहुत सारे छोटे बच्चे भक्ति स्कूल में आते हैं। तो मेरा सिर्फ आपसे एक रिक्वेस्ट है, क्योंकि हमेशा ऐसा होता है कि आप जैसे पोजीशन पे जो लोग बैठ के मैसेज देते हैं ना, बच्चे उन्हें बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं। तो क्या आप कुछ टेक अवे मैसेज इन छोटे बच्चों को दे सकते हैं?
कैसे है कि पुट इन टू डिफरेंट वेज, बच्चों को बोलेंगे कि क्या है कि कभी कभी ऐसे लगता है कि माई चिल्ड्रन आर बीइंग वेरी डिफिकल्ट, बट इफ यू रियली लुक, अगर हम जीवन को देखते हैं, एक्चुअली आवर चिल्ड्रन आर ऑफन इन डिफिकल्टी। क्या है कि आजकल का जो समाज है उसमें इतने डिस्ट्रैक्शंस है। कभी कभी लोग बोलते हैं कि इतने सारे लोग अपने फ़ोन से एडिक्टेड क्यों हैं। मैं बोलता हूँ ये सवाल मत पूछिए कि फ़ोन इतना एडिक्टिव है तो सब क्यों एडिक्टेड नहीं है, ये आश्चर्य की बात है। तो क्या है कि एक्चुअली ग्रोइंग अप एज अ चाइल्ड एंड स्पेशली ग्रोइंग अप एज अ टीनेजर इन टुडेज वर्ल्ड इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। तो इसीलिए अगर हमारे बच्चे हमारी बात नहीं सुन रहे हैं, हमारे बच्चे थोड़े डिफ़िकल्टी हमको 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 परेशान हो रहे हैं, तो अंडरस्टैंड दैट वो दे आर नॉट बीइंग डेलिबरेटली डिफ़िकल्ट। क्या हो रहा है कि वो डिफ़िकल्टी में खुद है। और ख़ास करके जब टीनेज में आ जाते हैं तो क्या होता है, तब समस्या और बढ़ जाती है। तो अभी जब व्यक्ति होता है, एक्चुअली मैं एक नया किताब लिख रहा हूँ, भगवद गीता फॉर पेरेंट्स। अभी मैंने किताब लिखा है भगवद गीता फॉर CEO। तो भगवद गीता के आधार पर पेरेंटिंग प्रिंसिपल जो है, क्या होता है कि अभी जब कोई चाइल्ड होता है और कोई फिर यंग एडल्ट बन जाता है, तो अभी जब चाइल्ड होता है तो उसकी आइडेंटिटी क्या होती है कि मैं इनका बेटा हूँ, इनकी बेटी हूँ, वो आइडेंटिटी होती है। जब यंग एडल्ट बन जाता है तो मैं इंजीनियर हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मैं ये हूँ, वो आइडेंटिटी बन जाती है। पर जब वो टीन होता है तो क्या होता है, उनके लिए एक आइडेंटिटी क्राइसिस होती है। वो दे आर टू ओल्ड, वो इतने बड़े हो गए कि मैं सिर्फ इनका बेटा हूँ, इनकी बेटी हूँ, उससे वो संतुष्ट नहीं है। पर अभी तक उनकी एक खुद आइडेंटिटी बनी नहीं है कि मैंने ये डिग्री प्राप्त की है, मैंने ये किया है। तो इस समय वो पीयर प्रेशर बहुत होता है उन पे, क्यों, उनको ऐसी आइडेंटिटी चाहिए कि जिसमें वो अपने मित्रों में, अपने संग में भी उनको दे बिकम एक्सेप्टेड, रिस्पेक्टेड, और उससे काफ़ी जो होता है वो वल्नरेबल हो जाते हैं। तो एक अमेरिका में एक थिंकर मार्क ट्वेन, वो कहता है कि जब मैं 17 साल का था तो मेरे पिताजी पूरे मूर्ख थे। मैं 25 साल का हो गया हो, मुझे आश्चर्य लगता है कि पिछले 8 सालों में मेरे पिताजी ने कितना सीख लिया। तो क्या हुआ है कि वो पिताजी ने सीखा है, 17 साल में जो विचारधारा होती है 25 साल में विचारधारा होती है बदल जाती है। तो इसलिए तो रादर देन सिंपली डिमांडिंग लेट आवर चिल्ड्रन शुड लिसन टू अस, जरूरी है, पर क्या है, वी शुड ऑल्सो लिसन टू आवर चिल्ड्रन। लिसन मतलब नॉट ओबे, उनकी मांगों पूरा, हर मांग को पूरा नहीं करना है, पर उनके जीवन में क्या हो रहा है वो समझने का प्रयास करें, किस डिफिकल्टी में है। तो कैसे है कि बच्चों को बोल सकते हैं कि यू शुड ओबे योर चिल्ड्रन, बट क्या है कि ओबे योर पेरेंट्स। पर कैसे है कि इफ द चिल्ड्रन फील दैट माई पेरेंट्स अंडरस्टैंड मी, तो फिर अगर मुझे कुछ समस्या है और मैं किसी डॉक्टर के पास जाता हूँ, मुझे लगता है वो डॉक्टर को मेरी समस्या समझ में नहीं आई है, तो डॉक्टर अगर दवाई देगा तो मैं सुनूंगा ही नहीं उसको। तो कई बार क्या होता है कि बच्चों को लगता है कि यू डोंट अंडरस्टैंड मी ओनली। तो इसीलिए वो जो बोल रहे हैं, माता पिता बोलते हैं, ऐसे नहीं कि बच्चों को गाइडेंस नहीं चाहिए, एक्चुअली गाइडेंस चाहिए, पर उनको जो है वो जिस चीज़ों में जा रहे हैं, अगर हम उनके वर्ल्ड व्यू को थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे तो फिर क्या होगा, दे विल स्टार्ट सीइंग कि हम उनको अंडरस्टैंड कर रहे हैं, दे विल स्टार्ट वैल्यूइंग आवर गाइडेंस मोर। तो थोड़ा जो गीता का भी भाव क्या है, आई कंक्लूड विद वन पॉइंट, कि एक है जब ये छोटे बच्चे होते हैं तो तभी हम उनको इंस्ट्रक्शन देते हैं। इंस्ट्रक्शन मतलब क्या, तुम ये करो, तुम ये मत करो, ये रास्ते पे जाके मत खेलो, तुम घर में खेल सकते हो, ये इंस्ट्रक्शन है। पर जब टीन में आने लगते हैं तब हमें उनको विजन देना चाहिए। इंस्ट्रक्शन मतलब व्हाट टू डू, व्हाट नॉट टू डू। विजन मतलब ये करोगे तो ऐसे होगा, वो करोगे तो वैसे होगा। तो जब हम ये विजन देंगे तो उससे दे विल बी एबल टू चूज।
तो कई बार क्या होता है कि हम वो टीन में बजाते उनको इंस्ट्रक्शन देते रहते हैं, तो हमारे लिए आसान स्पष्ट होता है, अरे ये तो अच्छा है तुम्हारे लिए, पर वो कैसे अच्छा है वो उनको समझाना है। तुम ऐसे करो, ऐसे करोगे तो ऐसा होगा, और ऐसा होगा तो ऐसे से। तो क्या है कि आवर एज पेरेंट्स, तो हम जैसे बड़े हुए हैं तो शायद हम टीन हो जाते हैं, एडल्ट भी हो जाते हैं, तो हमारे माता पिता हमको इंस्ट्रक्शन देते रहते हैं, और बोले ऐसे ही हम बड़े हुए हैं, ऐसे ही हमने सीखा है। पर क्या होता है कि जनरेशन से बदल रहे हैं, जेंडर रोल्स भी बदल रहे हैं अभी, तो वी कैन नॉट एक्सपेक्ट आवर चिल्ड्रन टू बी लाइक दैट। तो उनको अगर विजन देते हैं, अगर उनको लगता है कि हाँ मैं जो माता पिता बोल रहे हैं इट मेक्स सेंस, तो फिर दे आर रेडी टू लिसन एंड दैट्स इट। तो अगर कम्युनिकेशन और अच्छा हो जाएगा तो इट कैन मेक अ लॉट ऑफ डिफरेंस। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण श्रीमद् प्रभु भगवद जी। गीता की, श्रील प्रभुपाद की, गौर भक्त वृंद की, जय गौर प्रेमानंदे। Hare Krishna. So each one of us are aspiring to continue, but it's 9 o'clock in the clock, so we'll have to stop somewhere, unfortunately. But at the same time, जैसे प्रभु जी ने कोट किया था श्रील प्रभुपाद जी को, to see things in right perspective. तो हम समझते हैं कि ये पूरा जो सेशन था, ये हमें to see things, it will help immensely to see things in right perspective, whether it is raising the children, whether it is raising our prakriti towards संस्कृति। तो ऐसे क्लिष्ट विषयों को बड़े ही सरल रूप से यहाँ समझाने के लिए हम बार बार प्रभु जी को धन्यवाद देते हैं। तो आइए हम सब हृदयपूर्वक प्रभु जी का धन्यवाद करेंगे हरे कृष्ण महामंत्र से। हरे कृष्णा 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 हरे हरे,